Assalamu alaikum everyone. We're going to begin the class now. I'm sharing my screen. All right everyone, we're going to begin with this chapter of population और population के topical past papers को हम solve कर रहे हैं. The students, some of the students have got this workbook. कुछ students ने workbook receive कर ली थी, तो आप लोग मेरे साथ साथ इसे solve करते रहना. Even if you do not have the workbook right now, अगर आपने workbook अपनी receive नहीं भी की है तो भी आपको अपने पास नोटबुक के अंदर इसे सॉल्व करते रहना सही है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द पास्ट पेपर्स. इस तरीके से इसके भी पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे. अगेन दिस इज द कंपाइलेशन ऑफ द 20 years ऑफ द टॉपिकल पास्ट पेपर्स ऑफ पॉपुलेशन चैप्टर. सही है, पॉपुलेशन चैप्टर इस साल एग्जाम में भी आएगा इंशाल्लाह. 25 मार्क्स का सवाल होगा इससे. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग इसे साथ साथ में देखें कि हर सवाल को किस तरीके से टैकल किया जाता है. डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सबको कैसे टैकल किया जाएगा. लेट्स बिगिन एवरीवन. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. 2 पेज का तो इसका सिर्फ सिलेबस लिखा हुआ है. खैर, सो सी दिस एवरीवन ऑन पेज नंबर 100. पेज नंबर 100 से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ. On page number 100 you can see the first thing, that is the population indicators. सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है population indicators. Now what do we mean by the population indicators? Population indicators give you an idea whether the population is going at an increasing trend or the decreasing trend. Population indicator आपको क्या बताते हैं कि आपके मुल्क में जो आबादी है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, स्टेबल रेट के ऊपर जा रही है. So this is what you know once you see the population indicator. जब आप population indicator देखते हो तो आपको ये चीजें समझ में आती हैं. So we have the first definition over here, that is define the term birth rate. और define the term birth rate का सवाल एग्जाम में आ चुका है. It was asked in the exam in October November 2018. October November 2018 में ये वाला सवाल आ चुका है. Define the term birth rate. How can we define the term birth rate? Birth rate को हम कैसे define कर सकते हैं? So this is the definition everyone. Birth rate is the number of babies or the births born per 1,000 people per year. Again everyone, I'm rephrasing it over here. It is the number of births per 1,000 people per year. What do we mean by this per 1,000 people per year? इसका मतलब क्या होता है? What do we mean by per 1,000 people per year? So consider it everyone, इस तरीके से सोचना इसे कि we have the population in crores in Pakistan. सही है, पाकिस्तान में जो आबादी है that is in crores. We have the population in crores in Pakistan. Now the thing is कि population crores है. If how can we estimate on daily basis? हम daily basis पे किस तरीके से estimate कर सकते हैं कि how many people, हर एक घर में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर एक घर में कितने लोग मर रहे हैं. It is very difficult to estimate on daily basis. It is very difficult to calculate on daily basis. So what do we do? Instead of calculation, we do estimation. हम क्या करते हैं? हम इसमें estimation करते हैं. Estimation क्या होती है कि for example, we have a sample. We have a sample of 1,000 people. We have a sample of 1,000 people. 1,000 people का एक sample है आपके पास. So what do you see? You see the sample. इस sample में कितने हजार लोगों में से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं हजार लोगों में से. So this is called what? This is called the birth rate. इसे हम birth rate कहते हैं. What is the birth rate? Birth rate is the number of people born per year per 1,000 people. 1,000 लोगों के सैंपल में से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, that is called the birth rate. इसे हम birth rate कहते हैं. Now similarly, what is meant by the death rate? ये death rate क्या होता है? Death rate means कि 1,000 लोगों के सैंपल में से, 1,000 लोगों के सैंपल में से how many people are dying? 1,000 लोगों के सैंपल में से हर साल कितने लोग मर रहे हैं, that is called the death rate. इसे हम death rate कहते हैं. So see the definition over here. Definition इसकी मई जून 2023 में पूछी जा चुकी है. See the definition everyone. The definition is the number of deaths per 1,000 people per year.
So what is the death rate? Death rate is the deaths per 1,000 people per year. हर साल 1,000 लोगों के सैंपल में से कितने लोग मर रहे हैं, इसे हम डेथ रेट कहते हैं. हर साल 1,000 लोगों के सैंपल में से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बर्थ रेट, उसे हम बर्थ रेट कहते हैं. देन वी हैव अनदर डेफिनेशन ओवर हियर. द डेफिनेशन इज डिफाइन infant mortality rate. Define infant mortality rate. What do we mean by infant mortality rate? Infant mortality rate का मतलब क्या होता है? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पैदाइश के फौरन बाद 2 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है. सो दैट इज कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. हु आर द इन्फेंट्स? इन्फेंट्स कौन होते हैं? इन्फेंट्स आर द किड्स अंडर 2 years ऑफ एज. 2 साल से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, दोज आर कॉल्ड द इन्फेंट्स. अगर 2 साल से पहले पहले बच्चों की डेथ हो जाए, दैट इज काउंटेड एज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. सो राइट डाउन विद मी एवरीवन, आप सब लोग मेरे साथ लिखिएगा. डिफाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. राइट डाउन. It is the average number of deaths of infants, bracket open, children under 2 years, bracket close, per 1,000 people per year. एक साल में कितने बच्चे पैदाइश के फौरन बाद मर गए 1,000 लोगों के सैंपल में से, इसे हम कैसे क्या समझते हैं, इसे कैसे डिफाइन करते हैं? वी कॉल इट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं. ना सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. ये थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में आपसे एक सवाल पूछा गया है. स्टडी फिगर showing selected population information about Pakistan October-November 2018. Using the data from figure, calculate the natural population increase for Pakistan. Show your working in the box below. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? आपको यहाँ पर कैलकुलेट ये करना है कि पाकिस्तान में कितना नेचुरल इंक्रीज हो रहा था, पाकिस्तान में कितना नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था. सो सी दिस एवरीवन. नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज को पहले डिफाइन कर लेते हैं. राइट डाउन. नेचुरल पॉपुलेशन increase is the difference between birth rate and death rate such that birth rate is higher than the death rate. देखो, मैंने इसकी क्या डेफिनेशन लिखी है. नेचुरल इंक्रीज का मतलब क्या होता है? नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज का मतलब क्या होता है? नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज का मतलब ये होता है कि अगर आपके मुल्क में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर आपके मुल्क में ज्यादा बर्थ रेट है एंड द डेथ रेट इज लो, और अगर आपके मुल्क में डेथ रेट लो है, यानी कि कम लोग मर रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके मुल्क में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर जाएगी. दिस इज कॉल्ड द नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज. Whenever the birth rate is greater than the death rate, it is called the natural population increase. तो population increase होगी. तो population increase कब होती है? जब ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और कम लोग मरते हैं. That is called the population increase. So see this everyone. Calculate the natural population increase for Pakistan. इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे. Natural increase equals to birth rate माइनस डेथ रेट. अब जल्दी से इंफॉर्मेशन में से देखो कि हमें बर्थ रेट नजर आ रहा है. बिल्कुल नजर आ रहा है. 26.8 पर 1,000 हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. माइनस डेथ रेट कितना नजर आ रहा है? डेथ रेट इज दिस वन. तो 7.0 आपको डेथ रेट नजर आ रहा है. इन दोनों को माइनस कर देंगे. क्या आंसर आएगा आपके पास? जल्दी जल्दी कैलकुलेटर निकाल लो कोई. व्हाट्स द आंसर? जल्दी से मुझे कोई बताओ. व्हाट्स द आंसर?
26.8 minus 7.0, what would be the answer? आंसर क्या आएगा आपके पास? 19.8 आएगा. 19.8 is the answer. So 19.8 per thousand is the answer. तो इस तरीके से हमने अपने आंसर को कैलकुलेट कर लिया. So prepare for such kind of questions in the exam as well. एग्जाम में इस तरीके की भी सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं. It is very good to see that some people are very actively participating on the chat. तो आप लोग बेटा सभी लोग इस तरीके से एक्टिव रहना, वरना दिन के टाइम पे तुम लोगों को रोजा लग रहा होता है, अभी तरावी के बाद तुम लोग को नींद आ रही होती है, पता नहीं पढ़ना कब है तुम लोगों को. तो कोशिश करना है एक्टिव रहना. सही है? तुम लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो मैं भी बोर हो जाऊंगा. पेज नंबर 101 एवरीवन, पेज नंबर 101. दिस इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन. डिफाइन नेचुरल पॉपुलेशन डिक्रीज. ये एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है. डिफाइन नेचुरल पॉपुलेशन डिक्रीज. एग्जाम में बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउड होता है. स्मार्ट वॉच या कोई भी वॉच अलाउड नहीं होती. कोई भी आप वॉच लेकर नहीं जाओगे, एनालॉग या डिजिटल वॉच कोई भी अलाउड नहीं होती, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर तो लेके जाना ही होगा. डिफाइन नेचुरल पॉपुलेशन डिक्रीज. राइट डाउन एवरीवन. इट इज द डिफरेंस between birth and death rates such that death rate is greater than the birth rate. कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जहां पर आबादी डिक्लाइन की तरफ जा रही है. जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आबादी बढ़ती जा रही है. कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां पर आबादी डिक्रीज हो रही है. फॉर एग्जांपल द यूरोप, सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल आइसलैंड. तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां आबादी डिक्रीज हो रही है. आबादी डिक्रीज क्यों हो रही है उसके रीजन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक पॉपुलेशन इंडिकेटर में आपको समझ में आ रहा है. पॉपुलेशन इंडिकेटर क्या बता रहा है कि व्हेनेवर द डेथ रेट इज हायर, मरने वालों की तादाद ज्यादा है, ज्यादा लोग मर रहे हैं, पैदा होने वालों की तादाद कम है, कम बच्चे पैदा हो रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल पॉपुलेशन डिक्रीज. इसे हम नेचुरल पॉपुलेशन डिक्रीज कहते हैं. देन वी हैव द क्वेश्चन डिफाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ये भी एंटिसिपेटेड है, ये इससे पहले एग्जाम में नहीं पूछा गया है. डिफाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो व्हाट इज मेंट बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी? हर मुल्क में ये एक एस्टिमेट किया जाता है कि पैदाइश के बाद कितनी एज तक लोग जिंदा रहेंगे. दैट इज कॉल्ड दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में 60-65 ईयर्स ऑफ एज इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यहाँ पर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि लोग 60 साल तक, 65 साल तक जिंदा रह पाते हैं. बट इन चाइना इट इज हायर, इट इज लाइक 85 ईयर्स ऑफ एज. चाइना में लोग 85 ईयर्स तक जिंदा रह पाते हैं. एंड इन जापान पीपल कैन लिव अप टू 95 ईयर्स ऑफ एज ऑन एवरेज. एवरेज तो वहां पे 95 ईयर्स तक, और 100 प्लस भी मैक्सिमम एज लिमिट वहां पर होती है. सो डू दिस एवरीवन. डिफाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इट इज द एवरेज नंबर ऑफ years a person is expected to live. For example, it is 65 years in Pakistan, while in China it is 85 years. तो कुछ कंट्रीज में 65 है, कुछ में 75 है, कुछ में 85 होगी. अच्छा, मैक्सिमम तो ज्यादा हो सकता है. आप कहोगे कि सर नहीं, मेरे नाना तो 90 प्लस भी जिंदा रहे, तो दैट इज मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सही है? एवरेज का क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है कि ऑन एवरेज कौन सी एज है जहां तक लोग जिंदा रह पाते हैं. सो इट मीन्स कि मैंने अपनी हाफ लाइफ पूरी कर ली है. सही है? आई एम इन माई अर्ली 30s, तो मैं 32 का हो गया हूँ, तो मैंने तकरीबन तकरीबन अपनी हाफ लाइफ पूरी कर ली है. तुम लोगों ने तकरीबन 25% अपनी जिंदगी पूरी कर ली है. The next question, everyone. Study figure which shows some population indicators in Pakistan in 1995 and 2002. So we have birth rate, we have death rate, infant mortality rate, life expectancy in years. मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत गौर से इस ग्राफ को पढ़ें और समझें कि 1995 में द बर्थ रेट वाज 41 per 1000 people. हर हजार के सैंपल में से 40 प्लस लोग पैदा हो रहे थे.
और 2002 में इट हैज डिक्लाइंड। 2002 में आपको क्या नजर आ रहा है कि बर्थ रेट डिक्रीज हो गया है, अब इतने बच्चे पैदा नहीं होते, अब 28 पर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। डेथ रेट अगर आप देखो, सो इट वाज 11 इन 1995, नाउ इन 2002 इट वाज 8। 2002 में क्या हो गया था कि डेथ रेट भी हो गया था। सो यू कैन सी द डिक्रीज इन द बर्थ रेट भी डिक्रीज हो गया। इनफेक्ट मोर्टेलिटी रेट में क्या हुआ कि पहले बच्चे पैदाइश के फौरन बाद जल्दी मर जाते, बट नाउ नॉट मेनी किड्स डाई आफ्टर बर्थ। बहुत सारे बच्चे पैदाइश के फौरन बाद नहीं मरते। थोड़ा सा नंबर एक्सपेक्टेंसी पहले 59 थी एंड इट इंक्रीज टू 64। तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। मींस कि पाकिस्तान एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर जा रहा है। मे बी इन द फ्यूचर पाकिस्तान में और अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी, मे बी हम लोग और ज्यादा जिंदा रह पाएंगे। सो दिस इज येट टू सी इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। दिस इज पेज नंबर 101, दिस इज पेज नंबर 101 ऑन वर्कबुक नंबर 4 of geography, workbook number 4 of geography. Now, which indicator shows that population growth may be slowing down? Birth rate is decreasing, this shows कि population growth rate कम हो जाएगा. Which indicator shows that there could be more children in the future? This shows that there is lower infant mortality rate, so there would be more survival rate. इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा survival rate भी हो सकता है. Why do the indicators show that there could be more people over 50 in the future? 50 से ज्यादा लोग कैसे हम होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? Because the lower death rate and higher life expectancy. हमें क्या पता चल रहा है कि फ्यूचर में कम लोग मरेंगे, ज्यादा उम्र तक जिंदा रह सकेंगे। That is why it shows कि there would be more people in the future above 50. तो ये तो 2002 का ग्राफ है ना। 2025 के हिसाब से यू कैन सी मोर पीपल लिविंग अप टू मोर ईयर्स। आजकल आपको ये नजर आता है कि ज्यादा लोग आपको नजर आ रहे होते हैं। सो हुज़ैफा इज सेइंग कि रमजान में लोग ऑयली फूड इतना खाते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इससे कम हो जाएगी। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। विद रेफरेंस टू योर आंसर्स, explain how the age structure of population is changing. So it is changing like that we have fewer kids in the future and we would have more younger people in the future. हमारे फ्यूचर में we are living in the future, in fact ये 2002 का है ना, तो अभी तो हम लोग समझो 2025 में है। सो वी आर इन द फ्यूचर। इस सवाल के हिसाब से आजकल हम लोग फ्यूचर में ही हैं। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं आप अभी का बताऊं और इवन इन द फ्यूचर और आगे के 10 15 20 साल के बाद क्या होगा कि कम बच्चे पैदा हो रहे होंगे और ज्यादा जवान लोग होंगे इन द अपकमिंग फ्यूचर। This brings us to page number 102, everyone. And page number 102 shows you demographic transition model. सबसे पहले दिमाग में सवाल आया कि सर ये इतना मुश्किल जो टर्मिनोलॉजी लिखी है इसका काम क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज अ ग्राफ। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज अ ग्राफ। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या है? इट इज अ ग्राफ। आप लोग साथ साथ में लिखते रहो। इट शोज द changes in birth and death rates over a period of time, over a period of time, with the changes in growth, along with the changes in population growth. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या है? लिखा हुआ बड़ी खतरनाक किस्म किस्म की अंग्रेजी में लिखा हुआ है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। उससे मासूम बच्चे वैसे ही परेशान हो जाएंगे, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये टू सिंप्लीफाई व्हाट इज इट, इट इज जस्ट अ ग्राफ। ये क्या है? सिर्फ एक ग्राफ है। और ये ग्राफ आपको क्या बताता है? दिस ग्राफ टेल्स यू how the birth rate is changing over the period of time, how the death rate is changing over the period of time, how the population growth is happening over the period of time, whether the population is increasing or decreasing. जैसी भी population बढ़ रही है या कम हो रही है ये भी आपको समझ में आ जाएगा if you see this graph. So see this graph, everyone. It was asked in 2018 May June. It was also asked in October November 2022. तो दो दफा ये ग्राफ्स इस तरीके से पूछे जा चुके हैं। सी बोथ द ग्राफ्स एवरीवन, दोनों ग्राफ्स को देखो, आपको बिल्कुल सिमिलर ग्राफ्स नजर आ रहे हैं। सो द ग्राफ्स वुड रिमेन द सेम। सही है।
द ग्राफ्स वुड रिमेन द सेम, द कंटेंट वुड रिमेन द सेम। आपको बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में उतारना होगा, सही है। एग्जाम में कोई डिफरेंट ग्राफ्स नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ्स आएंगे, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, ज्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। लेट्स रीड द ग्राफ विद मी एवरीवन। आप सब लोग मेरे साथ मिलकर इस ग्राफ को पढ़िएगा और समझिएगा कि व्हाट डज दिस ग्राफ शो अस। पहले मैं ये वाला ग्राफ आपको दिखाऊंगा, फर्स्ट वन, उसके बाद मैं आपको दूसरा ग्राफ दिखाऊंगा। This graph is called the demographic transition model. This graph is called the demographic transition model. I'm repeating everyone. This chapter is very important. I'm doing the topicals over here. सारे के सारे topicals 20 साल के आपके साथ solve कर रहा हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन का चैप्टर तो आएगा, सही है। पॉपुलेशन का चैप्टर तो एग्जाम में आएगा, तो बेहतर ये है कि आप लोग अपने 25 मार्क्स को पक्का कर लो, सही है। ये 25 मार्क्स से आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने मेरे साथ ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। इसमें खैर बहुत सारे अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, तो जब आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई ये होमवर्क करके आ जाना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, आज, कल, परसों और परसों के बाद वाले दिन, ये 4 दिन लगातार हम लोग ये पॉपुलेशन को ही करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे खत्म कर लें सारे टॉपिकल्स के साथ। सो सी दिस एवरीवन, दिस इज द एक्स एक्सेस, दिस इज द एक्स एक्सेस एंड दिस इज द वाई एक्सेस। मुझे एक्स एक्सेस नजर आ रहा है और मुझे वाई एक्सेस नजर आ रहा है। ऑन द वाई एक्सेस आई कैन सी बर्थ्स एंड डेथ्स पर थाउजेंड पर ईयर। क्या लिखा हुआ है? बर्थ्स एंड डेथ्स पर थाउजेंड पर ईयर, यानी कि मुझे यहाँ पर बर्थ रेट भी नजर आएगा और डेथ रेट भी नजर आएगा। नाउ इफ यू सी द ग्राफ, यू कैन सी द बर्थ रेट ओवर है। यहाँ पर एक लाइन आपको जाती हुई नजर आ रही है, दिस लाइन इज शोइंग यू द बर्थ रेट। ये लाइन आपको बर्थ रेट दिखा रही है, सही है। सो इफ यू सी द बर्थ रेट, तो बर्थ रेट इनिशियली बहुत हाई था, इनिशियली बर्थ रेट वॉज वेरी हाई, स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, और आखिर में जाते जाते ये काफी लो हो जाएगा। नाउ दिस ग्राफ आल्सो शोज यू द डेथ रेट। ये ग्राफ आपको डेथ रेट भी दिखा रहा है। सी दिस लाइन एवरीवन, इस लाइन को फॉलो करो। दिस लाइन शोज यू द डेथ रेट। ये लाइन आपको डेथ रेट भी दिखा रही है। सो यू कैन सी कि डेथ रेट वाज आल्सो हाई, शुरू में डेथ रेट भी हाई था, एंड इन द फ्यूचर द डेथ रेट वुड बी लो, और फ्यूचर में डेथ रेट लो हो जाएगा। Now there is third thing as well, labeled as Z। यहाँ पर एक और चीज है जिसे लेबल किया हुआ है Z। एंड इफ यू सी कि पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज हो रही है, दिस शोज यू द पॉपुलेशन ग्रोथ। ये आपको पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा रहा है। सो दिस लाइन शोज यू द पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। दिस शोज यू 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। What are these? These are called the stages. For example, this is stage 1 1940 से लेकर 1960 तक का, then 1960 से लेकर 1980, 1980 से 2000 तक का, 2000 से लेकर 2020 तक का, and in the future 2040 तक का। So there are 5 stages of this graph. इस ग्राफ में 5 different stages आपको नजर आ रहे हैं। These 5 stages show you कि बर्थ रेट स्टेज 1 में क्या था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लग गया। डेथ रेट इनिशियली बहुत हाई था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लग गया। शुरू में आबादी बहुत लो थी, उसके बाद फिर बढ़ गई। एंड लेट मी हेल्प यू विद दिस। 1940s, 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में आबादी क्या थी? दैट वाज अराउंड 7 करोड़। सो 7 करोड़ पीपल लिव्ड इन पाकिस्तान इन द 1940s। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल 2020 ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, वी हैव रीच्ड इन 2025। सो राइट नाउ आबादी इज 25 करोड़। अब आबादी कितनी हो गई है? 25 करोड़ की आबादी हो गई है। सो दिस शोज यू व्हाट, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है हाउ द पॉपुलेशन इज चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इससे आपको पता चल रहा है कि पॉपुलेशन किस तरीके से बदलती जा रही है। नाउ सी दिस ग्राफ एवरीवन, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2022। थोड़ी सी वेरिएशन है इसके अंदर। यहाँ पे यू हैव 2 y-axis। दिस इज y-axis नंबर 1 एंड दिस इज y-axis नंबर 2, एंड दिस इज द x-axis। ये आपको x-axis नजर आ रहा है। x-axis shows you the time period। ये आपको टाइम पीरियड दिखा रहा है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। रफली स्पीकिंग 1940 से लेकर 1960 तक का, 1960 से लेकर 1980, 1980 से लेकर 2000, 2000 से लेकर 2020, 2020 से लेकर 2040 तक की प्रिडिक्शन आपको नजर आ रही है। अगेन द सेम ग्राफ एवरीवन, बिल्कुल सेम ग्राफ है, कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल वैसे ही आपको नजर आ रहा है कि यू कैन सी के बर्थ रेट और डेथ रेट चेंज हो रहे हैं, सही है। यू कैन सी के बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर चेंजिंग ओवर हियर। आपको बर्थ रेट और डेथ रेट चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। यू कैन सी द चेंजेस इन द बर्थ एंड डेथ रेट, द चेंज इन द birth and death rate everyone.
सो यू कैन सी कि इनिशियली बर्थ रेट वाज वेरी हाई, शुरू में आपको बर्थ रेट काफी हाई नजर आ रहा था, लेकिन बर्थ रेट को आप रीडिंग कहाँ से करोगे? बर्थ रेट की रीडिंग करेंगे आप लोग इस साइड से, सही है, वाई एक्सिस में यहाँ पर आपको बर्थ रेट की रीडिंग करनी होगी, इस साइड से आप लोग डेथ रेट की रीडिंग करोगे। सो एग्जामिनर ने सिर्फ आपको कंफ्यूज किया हुआ है, सही है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज किया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, दो डिफरेंट इसने वाई एक्सिस बना दिए सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, कि आप परेशान हो जाओगे एग्जाम में कि पता नहीं दो दो वाई एक्सिस कहाँ से आ गए। हालांकि कुछ भी नहीं है, व्हाट यू नीड टू डू कि यहाँ पर आपको बर्थ रेट नजर आ रहा है, तो बर्थ रेट को आप यहाँ से रीड करके बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल, द बर्थ रेट वॉज हाई ओवर हेयर एंड in stage 1 it was like around 40 और ये 48 है, सही है, 40 और 48 है, तो बीच में कितने का गैप आ रहा होगा? अराउंड 42, 43, 46, 48, तो अराउंड दिस इज 42 पर थाउजेंड, अराउंड 42 पर थाउजेंड, तकरीबन 42 पर थाउजेंड आपको नजर आ रहा है। 42 पर थाउजेंड इज रफली स्पीकिंग द बर्थ रेट ओवर हेयर। एंड व्हाट अबाउट द डेथ रेट? आपको डेथ रेट क्या नजर आ रहा है? डेथ रेट कैन बी सीन फ्रॉम हेयर, डेथ रेट आपको यहाँ से नजर आएगा। सो लेट्स रीड दिस एवरीवन। सो दिस इज 25, 26, 27, 27, 27 पर थाउजेंड इज द डेथ रेट। डेथ रेट कितना हो गया? 27 पर थाउजेंड हो गया, और बर्थ रेट कितना हो गया? 42 पर थाउजेंड हो गया। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रीड द ग्राफ, इस तरीके से आप ग्राफ को रीड कर सकते हैं। ओके एवरीवन, नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन। अब इसके सवालात को देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। एड अ सूटेबल लेबल फॉर लाइन जी ऑन फिगर ए। फिगर ए में आपको ये लाइन जी नजर आ रही है, दिस इज द लाइन जी एवरीवन। सो लाइन जी में व्हाट डू वी लेबल इट? हम इसे क्या लेबल करेंगे? वी कैन कॉल इट द पॉपुलेशन ग्रोथ, वी कैन कॉल इट द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर मुझे यहां पर भी लेबल करने हो तो क्या होगा? सो दिस इज द लाइन एवरीवन, दिस लाइन शोज अस पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस लाइन शोज अस पॉपुलेशन ग्रोथ। दो दो ग्राफ आपको समझा रहा हूं साथ साथ में, तो साथ साथ में आप लोग देखते रहना ताकि आपको मुश्किल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, यूजिंग फिगर बी ओनली, व्हाट इज द बर्थ रेट एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बर्थ रेट क्या है? अच्छा, ये तो मैंने वैसे ही हंसते खेलते सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि बर्थ रेट हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा। सो सी दिस एवरीवन, दोबारा से इस ग्राफ को देख लें, अगर एक दफा में समझ में नहीं आया तो ये दूसरी दफा आपको मौका मिल रहा है कि बर्थ रेट आपको किस तरीके से पता करना है। सी दिस लाइन एवरीवन, दिस लाइन टेल्स यू द बर्थ रेट, ये लाइन आपको बर्थ रेट बता रही है। सो दिस लाइन शोज यू द बर्थ रेट। आप लोग मेरे साथ साथ लेबल कर लेना, मेरे साथ साथ आप लोग लेबल कर लेना, दिस लाइन शोज यू द बर्थ rate. This line shows you the death rate. This line shows you the population growth. Okay. So question क्या? What is the question over here? Question is the highest point of birth rate. कि birth rate highest कब था? So if you see यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? You can see the highest point over here. Yes or no? Highest आपको birth rate यहाँ पे नजर आ रहा है। So what do? You make the line over here. आप इस तरीके से y axis के ऊपर ये लाइन को लेके चले जाएं, और roughly speaking, if your answer is between 42 till 45 per thousand, so that would be the birth rate. तो आपका बर्थ रेट क्या होगा? इसी रेंज में आपको नजर आ रहा है। अगर किसी कैंडिडेट ने लिखा 42 पर थाउजेंड, दैट वुड बी करेक्ट आंसर। किसी कैंडिडेट ने लिखा 43 पर थाउजेंड, 44, 45 पर थाउजेंड, तो उसकी एस्टिमेशन के ऊपर यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज हाउ यू नीड टू राइट इट, इस तरीके से आप लोगों को लिखना होगा, सही है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। दिस इज हाउ वी नीड टू फाइंड द आंसर। मूविंग ऑनवर्ड्स, यूजिंग फिगर बी ओनली, व्हाट इज द डेथ रेट एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर डेथ रेट क्या है, ये भी मैंने अभी अभी आपको सॉल्व करके दिखा दिया, और मैं दोबारा से सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि हाईएस्ट डेथ रेट आपको कहां पे नजर आ रहा है। सी दिस पॉइंट एवरीवन, डेथ रेट सबसे हाई आपको कहां पे नजर आ रहा है? दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन सी द हाईएस्ट डेथ रेट। इस पॉइंट के ऊपर आपको हाईएस्ट डेथ रेट नजर आ रहा है, हाँ या ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा सबको? कैन यू से इट? आप सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सबसे ऊंचा डेथ रेट आपको नजर आ रहा है। सो डेथ रेट हाईएस्ट कितना नजर आ रहा है? दिस इज 25, 26, 27, 28, 29, 30। So you can see 27, 27 per thousand, 27 per thousand is the death rate. आपको death rate नजर आ रहा है 27 per thousand के ऊपर सबसे highest death rate
नजर आ रहा है। दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड द डेथ रेट। इस तरीके से डेथ रेट को फाइंड आउट करेंगे। ऑन फिगर बी, शेड द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल विच शोज हाई नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज। कौन सा ऐसा फेज है जहां पर आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज नजर आ रहा है? आंसर से के स्टेज 2 या स्टेज 3 या दोनों को शेड कर दिया जाए। सो सी द ग्राफ एवरीवन। इस ग्राफ को जरा देखते हैं कि कौन से ग्राफ को हम कौन से स्टेज को शो करेंगे। दिस स्टेज 1, दिस स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। एट विच पॉइंट कैन यू सी द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ आपको किस पॉइंट पे नजर आ रही है? सी द ग्राफ एवरीवन। मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से आप हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ को निकाल सकते हो। एक चीज, here the population growth rate is slow। दिख रहा है आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन बढ़ रही है। here the population growth rate is fast। here the population growth rate is fast। here it is slowing down। and here it is gradually decreasing। कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं है, सामने देखते रहो और जैसे ग्राफ आपको नजर आ रहा है ग्राफ को पढ़ के सुनाना है। लेकिन हाईएस्ट कहां पे नजर आएगा? सी दिस एवरीवन। पॉपुलेशन इंक्रीजेस व्हेन बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट। आबादी कब बढ़ती है? आबादी उस वक्त बढ़ती है जब बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और मरने वाले कम हो जाए। इस ग्राफ में हाईएस्ट पॉइंट बर्थ रेट का कहां पे नजर आ रहा है? दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बर्थ रेट। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बर्थ रेट। हाँ या ना? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बर्थ रेट। एंड सी द डिफरेंस एवरीवन। यहां से आप डिफरेंस देखो। सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बर्थ रेट एंड दिस इज द डेथ रेट। ये आपको डेथ रेट नजर आ रहा है। सो एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिमिलरली आप यहां पर भी देखो तो बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट। यहां पर भी देखो बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट। यहां पर भी देखो बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट। यहां पर भी देखो बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट। यहां पर भी देखो तो बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट। यहां पर भी बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट। जहां जहां पे स्टेज 2 और स्टेज 3 में यू कैन सी द बर्थ रेट इज ग्रेटर देन द डेथ रेट। आपको कॉन्स्टेंटली नजर आ रहा है कि बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है तो आबादी बढ़ेगी। इफ इन द एग्जाम इफ यू शेड स्टेज 2, अगर आपने स्टेज 2 को शेड कर दिया, यू आर गोइंग टू गेट द मार्क, आपको मार्क मिल जाएगा। इफ यू शेड स्टेज 3, अगर आप स्टेज 3 को भी शेड कर दें तो भी आपको मार्क मिल जाएगा। अगर आप दोनों को शेड कर दें तो भी एग्जामिनर आपको मार्क दे देगा। दिस इज व्हाट द मार्क स्कीम सेज। तो मार्क स्कीम में कहा गया है स्टेज 2 को शेड करने पे भी मार्क है, स्टेज 3 को शेड करने पे भी मार्क है, और दोनों को शेड कर दें तो भी मार्क मिल जाएगा। दिस इज व्हाट डू वी नो अबाउट द स्टेज 2 एंड 3। क्वेश्चन, हाउ द डेथ रेट इन पाकिस्तान इज चेंजिंग। पाकिस्तान में डेथ रेट कैसे चेंज हो रहा है? इट स्टार्टेड वेरी हाई। इनिशियली द डेथ रेट वाज हाई। Initially, the death rate was high, but over the years it has decreased। Over the years it has decreased, और over the years आपको death rate decrease होता हुआ नजर आ रहा है। So this is what can be seen over here कि आहिस्ता आहिस्ता it is declining। आहिस्ता आहिस्ता आपको decline होता हुआ नजर आ रहा है। This brings us to page number 103 everyone। पेज नंबर 103 पर आ जाए। पेज नंबर 103 इज अबाउट स्टेज 1। यहां पर आपसे स्टेज 1 से रिलेटेड सवाल किया जा रहा है कि व्हाट डू यू सी इन स्टेज 1। स्टेज 1 ऑफ द ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब व्हाट द स्टेज 1 ऑफ द ग्राफ शोज। ये स्टेज 1 ऑफ द ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? राइट डाउन। इट शोज द टाइम पीरियड बिटवीन 1940 and 1960। It shows high and fluctuating birth
and death rates, full stop. It shows low population and the population growth rate was slow but started to increase at the end of stage 1. अब देखो, मैंने जो कुछ लिखा है वही सब कुछ तुम्हें ग्राफ में दिखा चुका हूं, लेकिन एक दफा फिर दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे तुम लोग देख लो स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा हुआ है। जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही बातें तुम्हें दोबारा से मैं बोर्ड के ऊपर दिखाऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट तुम सबके दिमाग में बैठ जाए कि मैंने कुछ भी रट के नहीं लिखा। वॉट एवर आई सॉ इन द ग्राफ मैंने वो लिख दिया। कैसे लिखा? सी द ग्राफ वंस अगेन एवरीवन। एक दफा और आपको ग्राफ दिखाऊंगा। दिस इज स्टेज 1 एवरीवन। स्टेज 1 शोज यू द टाइम पीरियड बिटवीन 1940 एंड 1960 के बीच में टाइम पीरियड दिखा रहे हैं। इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है हाई बर्थ रेट, आपको नजर आ रहा है हाई बर्थ रेट। इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है हाई डेथ रेट, आपको यहाँ पर हाई डेथ रेट भी नजर आ रहा है। मैंने लिखा कि इट इज फ्लक्चुएटिंग। मैंने क्या लिखा? इट इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द फ्लक्चुएशन। ये आपको फ्लक्चुएशन नजर आ रही है। मैंने ये लिखवाया कि द पॉपुलेशन वाज लो। मैंने आपको क्या लिखवाया? देयर वाज द लो पॉपुलेशन, कि आबादी बहुत कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेज 1 के एंड पे देयर वाज इंक्रीजिंग ट्रेंड, और आखिर आखिर में आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा था। ओवरऑल यू सॉ द स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, आपको स्लो रेट के ऊपर आबादी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। दिस इज व्हाट द स्टेज 1 ऑफ द ग्राफ शो। स्टेज 1 में आपको ये नजर आ रहा है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ना, एग्जाम में अभी तक आया भी नहीं है। लेकिन अगला सवाल देखो, एग्जाम में बहुत दफा आ चुका है। 2006, 2009, 2013, 2018, 2015, इतनी दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। Give 3 reasons for greater percentage of children aged 9 and under in the rural areas. Explain the reasons for high birth rate in Pakistan. Explain why the birth rate of Pakistan is very high. Suggest 3 reasons for high birth rate in Pakistan during stage 1 and stage 2 of the demographic transition model. Give 2 reasons why Pakistan continues to have high birth rate. खास तौर पे अगर हम स्टेज 1 को देखें, खास तौर पे अगर हम स्टेज 2 को देखें, तो दोनों में बर्थ रेट बहुत हाई नजर आ रहा है। मींस के ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे। सवाल आपसे ये है कि इतने बच्चे पैदा क्यों हो रहे थे? सो देयर आर सम पॉइंट्स रिटन ओवर हियर एज वेल। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, और मैं इसे कनेक्ट करूंगा, जरा एक कहानी बना के इसे कनेक्ट करूंगा कि व्हाई देयर वर सो मेनी चिल्ड्रन between 1940, 1960 and 1960 till 1980। इस टाइम पीरियड में इतने सारे बच्चे आपको क्यों नजर आ रहे थे? सो कंसिडर दिस एवरीवन। 1947 में तो पाकिस्तान बना है, ऐसा ही है। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में मेनली देयर वाज द ट्रेडिशनल सोसाइटी। हमारी सोसाइटी कैसी थी? दिस वाज द ट्रेडिशनल सोसाइटी। वी यूज्ड टू हैव अ ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज। ज्यादातर आबादी कहाँ पर थी? ज्यादातर आबादी रूरल एरियाज में थी। इतने तो शहर बने ही नहीं थे उस टाइम पे, अर्बन आबादी होती ही नहीं थी। मेनली पीपल लिव्ड इन द रूरल एरियाज। अच्छा, रूरल एरियाज में मेजर ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग वॉज द मेजर ऑक्यूपेशन। मेजर ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग वॉज द मेजर ऑक्यूपेशन। अब फार्मिंग भी कौन सी होती थी? फार्मिंग यूज टू बी डन सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जिसमें फार्मर प्लस फैमिली मेंबर्स वर्क। सही है? जो किसान बाप है और उसके बच्चे सारे घर भर मिलकर काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो जब सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, दे नीड टू हैव मोर चिल्ड्रन। उन्हें जरूरत क्या थी? दे वांटेड टू हैव मोर चिल्ड्रन। वो चाहते थे कि उनके ज्यादा बच्चे पैदा हों। दे वांटेड टू हैव मोर चिल्ड्रन। व्हाई? so that there would be more workers available on the farm, so that everyone would be working and they would be raising their income, तो family की income increase हो रही होगी। that would be the advantage of it. So this is point number 1 everyone. People used to have more children because they wanted to raise the income of the family,
एज मोर चिल्ड्रन वुड बी एबल टू वर्क ऑन द फार्म, तो इससे क्या होगा, फार्मर की इनकम में इजाफा हो जाएगा, इसी वजह से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते थे। खास तौर पे स्पेशली मोर चिल्ड्रन वॉज कंसिडर्ड अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। इज्जत की बात थी भाई, ये इज्जत की बात क्या थी कि अगर मेरे ज्यादा बच्चे होंगे तो मेरी तारीफें होंगी, मोहल्ले वाले तारीफ करेंगे, वाह भाई देखो इनके तो इतने सारे बच्चे हैं, ये तो बड़े खुशहाल हैं। और खास तौर पे प्रेस्टीज उस वक्त आपकी बढ़ेगी जब आपके पास ज्यादा सन्स होंगे, इफ यू हैव मोर सन्स, अगर आपके पास ज्यादा बेटे होंगे तो आपकी ज्यादा शान में इजाफा होगा, पीपल वुड लाइक यू मोर, आपकी मोहल्ले में इज्जत होगी, क्योंकि बेटे को कंसिडर किया जाता है कि बेटे कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी में, फैमिली की इनकम में बेटे कंट्रीब्यूट करेंगे, बेटियां नहीं करेंगी। सो दैट इज व्हाई हैविंग मोर सन्स स्पेशली वाज कंसिडर्ड द मैटर ऑफ प्रेस्टीज, क्योंकि बच्चे ही आगे की जनरेशन को कंटिन्यू, बेटे ही आगे की जनरेशन को कंटिन्यू भी करेंगे। व्हाट एल्स, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज लेस एजुकेशन, especially for females, which led to early marriages. It led to early marriages and higher population. होता ये था कि ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, जल्दी जल्दी शादियां करवा दी जाती थी, और इस वजह से भी ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। सो दिस वाज अनदर रीजन। अच्छा, इसका क्या ताल्लुक है, लेस एजुकेशन का क्या ताल्लुक है? एक तो अर्ली मैरिजेस वर्सेस लेट मैरिजेस हो गई। सेकेंडली इट ऑल्सो डील्स विद द लिटरेसी, ऑल्सो डील्स विद द अवेयरनेस। लिटरेसी ऑल्सो डील्स विद द अवेयरनेस। जितनी ज्यादा लिटरेसी होगी, people would be more aware about the burden on economy due to higher population। अगर लोगों को ये पता होगा कि अवेयरनेस होगी कि ज्यादा बड़ी फैमिलीज इकोनॉमी के ऊपर बर्डन होती है, सो दे वुड वांट टू हैव लेस चिल्ड्रन, तो वो कम बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन पुराने वक्तों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतना ज्यादा फैमिली प्लानिंग के बारे में या बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो इसी वजह से लोगों के ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। ऑल्सो polygamy was common। polygamy means the multiple marriages as it is also permissible in Islam। इस वजह से भी ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, ये कुछ रीजंस हैं। एक और इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये होता है कि अल्लाह इज द वन हु प्रोवाइड्स रिस्क। तो अल्लाह इज द वन हु प्रोवाइड्स रिस्क, इस वजह से जितने बच्चे करते रहो तो अल्लाह ताला हर किसी का रिस्क देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से भी ऑफन पीपल वांट टू हैव मोर चिल्ड्रन, इस वजह से भी ज्यादा बच्चे होते हैं। So let's solve this, everyone. Give two reasons why Pakistan continues to have high birth rate. Suggest three reasons for high birth rate in stage 1 and stage 2. In stages 1 and 2, population mainly lived in rural areas having traditional mindset where higher education was not common, causing early marriages and less awareness about family planning, birth control, and burden on economy due to higher, due to more children, due to more children. Full stop. Also, having more sons was considered a matter of prestige, as a matter of prestige
as they would work on farm and raise income. Full stop. Also, infant mortality rate was high. So, for future security, people had more children. ये वाला पॉइंट क्या लिखा है भाई मैंने, जरा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. द पॉइंट इज के पुराने वक्तों में पैदाइश के बाद अक्सर बच्चे जल्दी मर जाया करते थे. पैदाइश के बाद अक्सर ये होता था कि विद इन 2 years द किड्स यूज्ड टू डाई. सो द पेरेंट्स वांटेड टू हैव मोर चिल्ड्रन. लोग चाहते थे कि उनके ज्यादा बच्चे हों. फॉर एग्जाम्पल, दे यूज टू हैव मोर चिल्ड्रन लाइक 8 to 10 kids. वो चाहते थे 8 से 10 बच्चे हों, ताकि अगर एक दो जल्दी मर भी जाएं तो उनके पास बाकी ऑप्शंस तो होंगे, बाकी बच्चे तो तब भी सरवाइव करेंगे. तो दिस वाज अनदर रीजन बिहाइंड हायर पॉपुलेशन. इसी वजह से ज्यादा आबादी बढ़ती थी. दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पेज एवरीवन. पेज नंबर 104 suggests 3 reasons for high and fluctuating death rate in Pakistan during stage 1 of the demographic transition model. इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के हिसाब से इतना डेथ रेट हाई क्यों था, इतने लोग क्यों मर रहे थे. वंस अगेन एवरीवन, पुराना वक्त है 1940 से 1960. तो इस टाइम पर स्टेज वन में द प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज की कमी थी, और इसी की वजह से द चिल्ड्रन कुड नॉट रिकवर. देयर वाज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अक्सर ऐसा होता था कि बच्चे रिकवर नहीं कर पाते थे और बच्चे पैदाइश के बाद मर जाते थे, जिसकी वजह से डेथ रेट में इजाफा हो रहा था. नॉट ओनली द किड्स, ऑल्सो देयर वाज द हाई मैटरनल डेथ रेट. कि अक्सर ऐसा भी होता था कि द मदर यूज टू डाई एज वेल ड्यूरिंग द बर्थ. सही है, बर्थ के टाइम पर या बर्थ देते वक्त के टाइम पर द मदर ऑल्सो यूज टू डाई. तो इसकी वजह से भी डेथ रेट बढ़ता जा रहा था. देयर वर मेनी डिजीजेस इन द पास्ट. बहुत सारी डिजीजेस होती थी और उन डिजीजेस में ठीक तरीके से उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाता था. इफ यू ऑल रिमेम्बर कि उस जमाने में फूड शॉर्टेजेस भी होते थे और फूड शॉर्टेजेस की वजह से भी लोग मर रहे होते थे. देयर वाज लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज. उस जमाने में ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छे से डेवलप नहीं थी. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर फॉरेन से हॉस्पिटल पहुंचना है तो वो भी नहीं पहुंच पाते थे. इन केस ऑफ मतलब इमरजेंसी अगर डॉक्टर से कोई कंसल्टेंसी करनी है तो वो भी नहीं कर पाते थे. एंड दिस वाज अनदर रीजन बिहाइंड दी हायर डेथ रेट. और उसके अलावा बहुत सारे पॉसिबल रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट लेट्स कंपाइल इट इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर. ये सवाल 3 मार्क्स का है. 3 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, एंड दैट वुड बी इट. सिर्फ 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा. लेट्स राइट डाउन एवरीवन. ड्यूरिंग stage 1, there was lack of medical facilities, so the infants could not recover from diseases, which led to high infant mortality rate, lack of care, food and nutrition, maternal death rate was also high, full stop, due to poorly developed
transport and telecommunications, infrastructure. It was difficult to access medical help in time. Full stop. People also died due to natural disasters. Due to natural disasters. सही है, तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया. This brings us to the next page everyone. अगले पेज पर चलते हैं. This is now stage 2. हम स्टेज नंबर 2 पर आ गए. पेज नंबर 105. स्टेज 2 का एक अलग से ग्राफ भी आया हुआ है. अभी ये बल्कि किसी स्कूल के बच्चे ने मुझे दिखाया था, उनके स्कूल के एग्जाम में आया था. किसने दिखाया था? आई गेस नाम पढ़ूंगा तो खुजैमा ने दिखाया था. खुजैमा है क्लास में यहाँ पे? खुजैमा के स्कूल में एग्जाम में आया था ये. सही है वाला ग्राफ. Study figure which gives information on the birth rates and death rates in Pakistan. Birth rate और death rate में पाकिस्तान में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं नजर आ रहा है हमें. Add a suitable label for the y-axis, vertical axis. मई जून 2015 में पूछा गया कि ये जो y-axis है ये आपको क्या शो कर रहा है. ये दो लाइंस हैं, एक लाइन बर्थ रेट की है, दूसरी लाइन डेथ रेट की है. तो y-axis आपको क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग यू पर थाउजेंड पॉपुलेशन. ये आपको बता रहा है कि हजारों में पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज हो रही है. सर्कल वन ऑफ द लेटर्स सी, डी और ई ऑन द ग्राफ टू शो द पॉइंट वेयर द नेचुरल इंक्रीज इज द हाईएस्ट. सबसे ज्यादा आबादी कहां पर बढ़ी होगी? यहाँ पर लाइन तो ड्रॉन नहीं है, यहाँ पर तो लाइन को ड्रॉ नहीं किया हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी कहां पर बढ़ रही होगी? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पर हो रही होगी? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी इस जगह पे. सी दिस एवरीवन, डी. वाई डी? द क्वेश्चन इज कि सर वाई डी? वाई डी क्योंकि यहां पर देखो आपको थोड़ा सा ये बर्थ रेट हाईएस्ट पॉइंट पर नजर आ रहा है. दिस इज द बर्थ रेट ओवर है एंड दिस इज द डेथ रेट ओवर है. ये आपको डेथ रेट यहां पर नजर आ रहा है. इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन द डेथ रेट एंड बर्थ रेट, सो दिस इज द हाईएस्ट ओवर हेयर. यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट हाईएस्ट नजर आ रहा है. इफ यू सी ओवर हेयर द डिफरेंस इज लेस. यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस आपको कम नजर आ रहा है. इफ यू सी दिस, यहाँ पर तो और भी लो हो गया. सही है. सो दिस इज द बर्थ रेट एंड दिस इज द डेथ रेट. तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है लोएस्ट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हाईएस्ट, और यहाँ पे आपको मीडियम नजर आ रहा है. सो डी इज द आंसर एवरीवन. डी इसका आंसर हो जाएगा. तो डी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज तेजी से बढ़ रहा होगा. Describe the changes that occur in stage 2 of the demographic transition model. Using figure B only, what happens to the total population in stage 2? Stage 2 में क्या हो रहा है? So see this everyone. यहाँ पे लिखा हुआ है ना बर्थ रेट के लिए कौन सी लाइन है, डेथ रेट के लिए कौन सी लाइन है. इट्स सीन ओवर है. बर्थ रेट और डेथ रेट के लिए कौन सी लाइन. जवाब लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करो, बिकॉज मुझे तो इम्पैक्ट बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि इट इज ऑन टाइम. बिल्कुल सब कुछ साथ साथ में इम्पैक्ट नजर आ रहा है. कभी कभी थर्सडे वाली क्लास में हो जाता है आगे पीछे, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे वैसे सही चलता है. सो सीरियस एवरीवन, यहाँ पे जरा देखना कि स्टेज 2 आपको ग्राफ में क्या दिखा रहा है. स्टेज 2 शोज यू हाई बर्थ रेट बट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. फिर यहां से लेकर यहां तक देखो, इट शोज यू डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग वेरी क्विकली. फिर ये वाली लाइन आपको क्या दिखा रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको हाई नजर आ रहा है. दिस इज स्टेज 2 एवरीवन. ये स्टेज 2 में तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं. स्टेज 2 में आपको नजर आ रहा है कि बर्थ रेट हाई है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है. डेथ रेट बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ती हुई जा रही है. सो दिस इज व्हाट कैन बी सीन ओवर हियर. ये बहुत तेजी से आपको नजर आ रहा है. दिस इज स्टेज 2 एवरीवन. जल्दी से हम स्टेज 2 को देख लेते हैं. स्टेज 2 शोज यू
the time period between 1960 and 1980 roughly speaking. तकरीबन ये time period है जो कि आपको नजर आ रहा है. So again going back to the stage 2 question, stage 2 वाले सवाल पे चले आते हैं. Describe the changes that occur in stage 2 of the demographic transition model. Demographic transition model में stage 2 आपको क्या बता रहा है? It shows the time period between 1960 and 1980, full stop. Birth rate was high but started to decrease gradually, full stop. The death rate fell quickly, full stop. The population growth rate became faster. सही है भाई. तो 3 चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही थी. बर्थ रेट हाई था, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लग गया. डेथ रेट बहुत तेजी से फॉल कर रहा था, और जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी. पहले बहुत स्लो थी, फिर अचानक से उसने स्पीड पकड़ ली थी. दिस इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम द स्टेज 2 ऑफ द ग्राफ. अगला सवाल पढ़ते हैं, पेज नंबर 106 एवरीवन, एंड सी द टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. बस ये चेक करें इस सवाल की फ्रीक्वेंसी क्या है. पेज नंबर 106 एवरीवन. Death rate in Pakistan has been decreasing every year since 1960 stage 2. Suggest reasons for this. May June 2015. सवाल ये है कि 1960 से लेकर onwards मुस्तकिल डेथ रेट गिरता जा रहा है. वर्कबुक बाय किया. If you live in Gulshan, so Gulshan वाले students can collect it from the nearest centers on Saturday and Sunday. If you live in DHA, तो DHA में I'll be there tomorrow. So tomorrow you can coordinate with me, और DHA के students को मिल जाएगा. Those who live near PCHS, some of them got it already. The others need to get it on Wednesday. जो PCHS वाले students होंगे वो मुझसे ले लेंगे. हाँ, तो nearest center से ही लेंगे ना आप लोग. और कहाँ से लेंगे? बाय किया तो हो जाएगी इफ यू आर इन कराची, और अगर कराची से बाहर हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको कोरियर करना पड़ेगा. वर्कबुक मुनीजा आपके पास है? मैंने खुद दी है आपको, अपने हाथों से दी है वर्कबुक. दिस इज वर्कबुक नंबर 4. वर्कबुक नंबर 4 मैं आपको दे चुका हूँ. सो पेज नंबर 106 एवरीवन, सी दिस क्वेश्चन. Give one reason why the death rate has changed over this period between 2000 and 2014. Stage 3. Explain why the death rate in Pakistan is changing. You should develop your answer. Why is this figure of older dependents likely to increase in the next 20 years? State 2 reasons for a declining death rate. State 3 reasons for reduction in the death rate in stage 2 and 3 of the demographic transition model. Explain 2 ways in which the death rates can be reduced in Pakistan. You should develop your answer. Give 2 reasons for increasing percentage of older dependents, people aged 60 or over, in Pakistan's population structure. इतनी दफा थोड़े थोड़े वेरिएशन से सवाल पूछा गया है. कभी कह रहे हैं कि डेथ रेट क्यों डिक्रीज हो रहा है, कभी कह रहे हैं रिड्यूस क्यों हो रहा है, कभी कह रहे हैं कि कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कभी कह रहे हैं कि फ्यूचर में मजीद कम कैसे हो जाएगा, कभी कह रहे हैं कि फ्यूचर में बूढ़े लोगों की तादाद क्यों बढ़ जाएगी. इट ऑल मीन्स द सेम थिंग कि बर्थ रेट डिक्लाइन क्यों हो रहा है. तो क्यों का रीजन आपको देना है. दिस इज अबाउट द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन इन डेथ रेट. पाकिस्तान में कम लोग क्यों मर रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है. सो व्हाई आर लेस पीपल डाइंग एवरीवन. कम लोग क्यों मर रहे हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड के ऊपर. 1960 ऑनवर्ड्स की बात करते हैं. 1960 ऑनवर्ड्स की बात करते हैं कि व्हाट वाज हैपनिंग. इफ यू ऑल रिमेंबर 1960, अगर आपको 1960 याद हो, दिस वाज द टाइम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अयूब खान. या अयूब खान की गवर्नमेंट का टाइम था. अयूब खान की गवर्नमेंट में द फूड शॉर्टेजेस वर काउंटर्ड.
फूड शॉर्टेजेस को काउंटर कर लिया गया था। सो इट मींट कि अच्छा खासा फूड और न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा, अब इतना ज्यादा लोगों को भूख से डेथ उनकी नहीं होगी। ऑल्सो मोर हॉस्पिटल्स वर मेड, ज्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जा रहे थे, मेडिकल फैसिलिटीज को डेवलप किया जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा था, बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा था, जिसकी वजह से द मेडिकल हेल्प वाज क्वाइट एक्सेसिबल, बहुत आसानी से मेडिकल हेल्प को एक्सेस कर सकते थे। व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, उसके बाद क्या हुआ? 1970s was the time of जुल्फिकार अली भुट्टो। उसके बाद गवर्नमेंट आई जुल्फिकार अली भुट्टो की। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में भी बहुत सारे क्लिनिक्स बनाए जा रहे थे, उनके दौर में भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे थे, ताकि मजीद डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेन किया जा सके, ताकि डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेन किया जा सके। तो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ बेहतर होती जा रही थी, कम लोग मर रहे थे, दवाइयां अवेलेबल होती जा रही थी, लो कॉस्ट मेडिसिन अवेलेबल होती जा रही थी, प्राइसेस जो थी वो कम कर दी गई थी, जो दवाएं हैं वो पहले महंगी होती थी आहिस्ता आहिस्ता सस्ती कर दी गई थी, तो इसकी वजह से भी फायदा हो रहा था। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स एवरीवन, मुझे असल में बस ये ग्राफ खत्म करवाना है, इसके बाद मैं ऑफ कर दूंगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। सही है, ये बस मुझे ग्राफ कंप्लीट करवाना है, स्टेज 1 2 3 4 5, वरना अगर ये कल पे चला गया तो फिर दोबारा से पूरा इंट्रो देना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या था। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेना। सही है, मुझे भी मुश्किल हो रही है पढ़ाने में, क्योंकि मुझे तो सुबह से पढ़ाना होता है, लेकिन थोड़ी देर आप लोग भी अगर बर्दाश्त कर लेंगे तो मुझे भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और ये हमारा टॉपिक भी जल्दी कवर हो जाएगा। सो दिस वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s। ये काम हो रहा था 1960s और 70s में। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गया। जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली उसमें डेथ रेट में भी असर पड़ा था, और डेथ रेट भी डिक्रीज होता जा रहा था। तो लेट्स राइट डाउन एवरीवन, इसे लिखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग स्टेजेस, ड्यूरिंग स्टेज 2 onwards, death rate started to decrease quickly due to better availability of food and nutrition, as modern seeds and irrigation facilities increased production, full stop. Also, foreign aid was received by Pakistan, डिफरेंट कंट्रीज से हम भीख भी ले रहे थे, फुल स्टॉप. मोर मेडिकल facilities were developed and cost of medicines decreased, full stop. The children could recover from diseases, so the infant mortality rate decreased, full stop. The transport and टेलीकम्युनिकेशन लिखते लिखते हाथों में दर्द हो जाता है.
infrastructure developed which made medical help accessible in time। तो वक्त पे आपको मेडिकल हेल्प मिल जाएगी जिसकी वजह से लोगों के लिए डॉक्टर्स तक पहुंचना, हॉस्पिटल्स तक पहुंचना आसान होता जा रहा था। अगला सवाल पढ़े। एक्सप्लेन व्हाई पाकिस्तान हैज अ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान सिंस 1991। पाकिस्तान में आबादी क्यों तेजी से बढ़ रही है? आबादी इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि हाई बर्थ रेट था हमारे पास और डेथ रेट डिक्रीज हो गया था। सो वी हैड हायर बर्थ रेट एज कंपेयर टू द डेथ रेट, क्योंकि हमारे पास बर्थ रेट ज्यादा था और डेथ रेट हमारा लो था, इस वजह से आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। सी दिस ग्राफ एवरीवन, एक दफा और आप लोग ग्राफ को देख लेना। दिस ग्राफ ओवर हेयर शोज यू, ये वाला ग्राफ भी आपको दिखा सकते हैं। दिस ग्राफ ऑल्सो टेल्स यू कि एट एवरी स्टेज यू कैन सी के बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट आपको लो नजर आ रहा है। एट एवरी स्टेज यू कैन सी द बर्थ रेट इज हाई, डेथ रेट इज लो। एट एवरी स्टेज यू कैन सी बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज लो। सो एट एवरी पॉइंट द पॉपुलेशन वुड बी इंक्रीजिंग। हर पॉइंट के ऊपर आपको क्या नजर आएगा? पॉपुलेशन आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एट एवरी पॉइंट यू कैन सी बार बार आपको नजर आ रहा है कि बर्थ रेट ज्यादा है, आबादी बढ़ती रहेगी। दिस वुड बी द पॉजिटिव ट्रेंड। अच्छा, दूसरी बात ये कि आबादी इस वजह से भी बढ़ती रहेगी क्योंकि डेथ रेट मुस्तकिल डिक्रीज होता जा रहा है। सो वी जस्ट स्टडीड के बेहतर पीने का पानी भी मिल जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज भी डेवलप्ड हो जाएंगी। तो इस वजह से भी आहिस्ता आहिस्ता डेथ रेट आपका डिक्रीज होता जाएगा और पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज व्हाट कैन बी सीन ओवर हियर। ये चीज हमें नजर आ रही है कि व्हाई वी हैव हायर पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान। दिस ब्रिंग्स अस टू स्टेज नंबर 3 एवरीवन। पेज नंबर 108 पे स्टेज 3 है। In 2018, Pakistan's birth rate was 25 per thousand population and the death rate was 7 per thousand population. Using figure B, identify which stage of demographic transition model was Pakistan in 2018. 2018 में हमारे पास कौन सा स्टेज चल रहा था? So this was stage number 3 everyone. ये stage number 3 था। Stage number 3 why? Because the birth rate was 25 per thousand, जबकि डेथ रेट was 7 per thousand। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि बर्थ रेट was still high and the death rate was very low. So at this point in 2018 we were in stage 3. तो 2018 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्टेज 3 में थे। See this graph below everyone. इस ग्राफ को देखिएगा। स्टडी फिगर which shows the death rates in Pakistan between 2000 and 2014, which shows you the stage number 3। ये आपको स्टेज नंबर 3 दिखाया जा रहा है। So what do you see over here? आपको क्या नजर आ रहा है? डेथ रेट पहले ज्यादा हुआ करता था, 2000 में ज्यादा था, लेकिन 2014 तक डेथ रेट हैज फर्दर डिक्रीज। आपको क्या नजर आ रहा है कि डेथ रेट हैज फर्दर डिक्रीज्ड। और कितना डिक्रीज हो गया है? व्हाट इज द डेथ रेट इन 2000? 2000 में डेथ रेट क्या है? 2000 की ग्राफ को पढ़ते हैं। 2000 में डेथ रेट आपको क्या नजर आ रहा है? इट सीम्स लाइक अराउंड 9.4 और 9.5 के बीच में आपको नजर आ रहा है पर थाउजेंड। एंड व्हाट वाज द डेथ रेट इन 2014? 2014 में कितना था? 2014 में यू कैन सी इट ओवर हेयर। 2014 के ग्राफ में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इट इज अराउंड 6.5, तकरीबन तकरीबन 6.5 के अराउंड आपको नजर आ रहा है। सो 9.5 माइनस 6.5, दिस वाज द चेंज इन द डेथ रेट। ये चेंज था डेथ रेट में, दिस वाज द चेंज इन द डेथ रेट। ठीक है। How has the death rate changed between 2000 and 2014? It has decreased, it has fallen, lower हो गया, कम हो गया, decline हो गया। Describe what the stage 3 of the graph shows. Stage 3 of the graph आपको क्या दिखा रहा है? पहले मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, उसके बाद ये सॉल्व करवाता हूँ। तो पेज नंबर 108 पे हम लोग। सी दिस ग्राफ एवरीवन, इस ग्राफ को देखना। स्टेज 3 में क्या नजर आ रहा है? दिस इज स्टेज 3 एवरीवन। स्टेज 3 शोज यू 1980 से लेकर 2000 तक का रफली स्पीकिंग टाइम पीरियड आपको नजर आएगा।
और यहाँ पे व्हाट डू यू सी के बर्थ रेट इज डिक्रीजिंग क्विकली. You can see के death rate is also decreasing, but you can see के population is increasing. Population क्यों increase हो रही है? क्योंकि at every point birth rate is higher than the death rate. हर point के ऊपर birth rate death rate से ज्यादा है. So this is the birth rate, this is the death rate. Birth rate हर point पे आपको ज्यादा नजर आ रहा है. This is the birth rate and this is the death rate. So you can see कि हर point पे आबादी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी. Going back to page number 108 everyone. Page number 108 पर आ गया मैं. Page number 108. So गुलशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, you have already received the workbook on Saturday and Sunday. पीसीएचएस वाले स्टूडेंट्स को आज मिल गई थी, वर्कबुक मिल गई थी. डीएचए वाले स्टूडेंट्स कैन गेट इट टुमारो, और गुलशन वाले स्टूडेंट वुड अगेन गेट इट ऑन सैटरडे एंड संडे. गुलशन वाले स्टूडेंट्स दोबारा से सैटरडे संडे को रिसीव कर सकते हैं. स्टेज नंबर 3 एवरीवन. व्हाट डज द स्टेज 3 ऑफ द ग्राफ शो? राइट डाउन. इट शोज द टाइम पीरियड between 1980 and 2000. The birth rate declined quickly while the death rate continued to decrease. Full stop. As the birth rate was higher than the death rate, population increased at a faster rate. तो आबादी बढ़ती जा रही थी. बर्थ रेट क्योंकि अभी भी ऊपर था, डेथ रेट नीचे था, तो इस वजह से आबादी बढ़ती जा रही थी. दिस इज व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ. ये आपको ग्राफ से नजर आ रहा है. अच्छा, डेथ रेट कम क्यों हो रहा है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये बर्थ रेट क्यों कम हो रहा है? पहले तो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते थे, अब ये कम बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? अगला सवाल इसी के बारे में है. एंड सी द क्वेश्चन एवरीवन. ये सवाल क्या है? पेज नंबर 109 पे. एक्सप्लेन सम मेजर्स दैट कुड बी टेकन टू रिड्यूस द बर्थ रेट. ये बर्थ रेट डिक्रीज कैसे होता है? एक्सप्लेन व्हाई बोथ द बर्थ एंड डेथ रेट्स हैव फॉलन इन पाकिस्तान. स्टेज 3 में बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रहा है, डेथ रेट भी डिक्रीज हो रहा है. एक्सप्लेन हाउ बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोविजन कैन रिड्यूस द बर्थ रेट इन पाकिस्तान. बेहतर सेहत और तालीम की वजह से बर्थ रेट कैसे डिक्रीज करता है? एक्सप्लेन 2 रीजंस फॉर द फॉल इन बर्थ रेट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग स्टेज 3. स्टेज 3 में जो बर्थ रेट गिर रहा है, ये बर्थ रेट क्यों गिर रहा है? इतने कम बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. जब बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप होंगी, तो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाएगा. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाएगा. जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाएगा, तो ज्यादा सर्वाइवल रेट होगा. बच्चे 2 पैदा हुए और दोनों का सर्वाइवल रेट अच्छा हो गया, दोनों जिंदा रह गए, इन्फेंसी को क्रॉस कर लिया, बड़े हो गए. सो व्हाई वुड पेरेंट्स वांट टू हैव मोर चिल्ड्रन? लोग सोचेंगे ही नहीं कि ज्यादा बच्चे हों, वो कहेंगे कि नहीं, 2 ही बच्चे हो जाए, अच्छा है, दोनों सेहतमंद हों, ये अच्छी बात है. ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई फायदा नहीं है, वो फ्यूचर सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट टोटली खत्म हो जाएगा. दूसरी बात ये कि बर्थ रेट इस वजह से भी डिक्रीज होगा क्योंकि अच्छी एजुकेशन, खासतौर पे हायर एजुकेशन अगर रिसीव होगी, इसकी वजह से लेट मैरिजेस होंगी. जब देर से शादियां होंगी, सो देयर वुड बी लेस टाइम फॉर मोर चिल्ड्रन. तो इतने ज्यादा टाइम नहीं होगा कि ज्यादा बच्चे पैदा हो सकें. सो दिस वुड अगेन लीड टू लोअर बर्थ रेट. इसकी वजह से लोअर बर्थ रेट हो जाएगा.
एजुकेशन ऑल्सो मीन्स अवेयरनेस, ज्यादा अवेयरनेस होगी, सो पीपल वुड नो द बेनिफिट ऑफ द स्मॉल फैमिलीज, लोगों को मालूम होगा कि स्मॉल फैमिली अगर होती है तो इकोनॉमिक बर्डन नहीं होता, बड़ी फैमिली होती है तो इकोनॉमिक बर्डन ज्यादा होता है, सो पीपल वुड बी अवेयर ऑफ इट, पीपल वुड बी अवेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग, पीपल वुड बी अवेयर ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेथड्स एज वेल, तो इस वजह से इतना ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे। अच्छा, 1947 से स्टार्ट करें अगर हम, और हम पहुंच जाए 2000 तक, सही है? 2000 तक के टाइम पीरियड में आपने क्या देखा? पहले बहुत ज्यादा फार्मिंग होती थी, पहले बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में आबादी होती थी, आहिस्ता आहिस्ता वी स्टार्टेड टू हैव मोर अर्बन पॉपुलेशन, वी स्टार्टेड टू हैव मोर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ज्यादा इंडस्ट्रीज बनने लग गई। जब इंडस्ट्रीज बनने लग गई, so there was no need for more subsistence farming, there was less dependency कि बच्चे हमारे काम करेंगे। पीपल गॉट टू नो कि हाँ सही है, जब हमारे पास इंडस्ट्रीज होंगी, जब हमारे पास ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, तो हमें जरूरत नहीं है कि हमारे पास ज्यादा बच्चे हों, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जाके एक बच्चा भी आपका, दो बच्चे भी आपके, तो वो आसानी से जाके इंडस्ट्रीज से जाके अच्छा पैसा कमा पाएंगे, तो इतना जरूरत नहीं है आपको कि ज्यादा बच्चे पैदा करें। राइट डाउन एवरीवन। स्टेज 3 onwards, birth rate decreased due to better medical facilities, which led to lower infant mortality rate and less need to have more children. Full stop. Government and non-government organizations launched awareness about family planning schemes like Subs Sitara and birth control methods. Full stop. Full stop. Higher education led to late marriages and more awareness about the benefit of small families. Small families. Full stop. Due to mechanization, there was less need for manual labor, so even farmers had less children. ठीक है, जब ज्यादा कामों के लिए आपके पास मशीन्स होंगी, आप जल्दी काम कर सकते हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आपके पास ज्यादा बच्चे हों, तो वही काम करेंगे फार्म के ऊपर। बस ये समझो लास्ट क्वेश्चन होगा, आई गेस बिल्कुल ऐसे ही है, बस ये आखिरी पेज है, पेज नंबर 110 एवरीवन। स्टेज 4 आपको क्या दिखा रहा है? स्टेज 4 आपको क्या नजर आ रहा है? तो यहाँ पे जरा एक दफा मैं आपको एक और दफा दिखा देता हूँ, स्टेज 4 ऑनवर्ड्स हमें क्या नजर आ रहा है, तो ये इसका आखिरी क्वेश्चन होगा। सीधे से एवरीवन, स्टेज 4 और स्टेज 5 में, स्टेज 4 में आपको नजर आ रहा है लो बर्थ रेट, आपको नजर आ रहा है लो डेथ रेट, आपको नजर आ रहा है फ्लक्चुएशन, कभी बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। यू कैन सी के पॉपुलेशन इज स्लो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्लोइंग डाउन, पॉपुलेशन
growth rate is slowing down. आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। और फ्यूचर में देखो व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेज 5। स्टेज 5 आपको ये बता रहा है कि समझें 2020 से लेकर 2040 तक की प्रिडिक्शन है कि फ्यूचर में देयर वुड बी पॉपुलेशन डिक्रीज इन पाकिस्तान। आइंदा आने वाले 20 साल में पाकिस्तान में पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, आबादी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेथ रेट ये रहा, ये बर्थ रेट है। सो इन द फ्यूचर यू वुड सी कि डेथ रेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बर्थ रेट। अगले 20 साल में अल्लाह न करे बच्चे पैदा होंगे तो फ्यूचर में कहीं दिस इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, ये हमें ग्राफ में नजर आ रहा है। या द ग्राफ वुड बी गिवन इन द एग्जाम, एग्जाम में ग्राफ आपको गिवन होगा। और वैसे दिमाग में बसा लो इसे ना, इसकी पिक्चर को दिमाग में बसा लो। व्हाट डज स्टेज 4 ऑफ द ग्राफ शो? इट शोज द टाइम पीरियड, ये रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ टाइम पीरियड का, सही है, बिटवीन 2000 and 2040 birth and death rates are low and fluctuating. Population growth rate slows down. Describe the reasons behind fluctuating birth and death rates. कभी birth rate ऊपर है, कभी नीचे है, कभी, हाँ बिल्कुल, ये तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। मतलब अब तो इतना सीख गए हो गए कि अब तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो। फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? बर्थ रेट कभी बढ़ रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, डेथ रेट कभी बढ़ रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों है? इट इज फ्लक्चुएटिंग ड्यू टू द चेंजेस इन इकोनॉमी। अगर बहुत खुशहाली होगी, टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिए, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, लोगों को फील होता है कि वो बड़ी बड़ी फैमिलीज को मेंटेन कर पाएंगे, ज्यादा बच्चों का खर्चा उठा पाएंगे, तो बर्थ रेट आपको ऊपर जाते हुए नजर आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई और पता नहीं कितने टैक्सेस बढ़ गए, तो लोग सोचेंगे नहीं भाई इतने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, वही काफी होते हैं, इतने बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते, तो बर्थ रेट आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। कभी कभी ये हो गया कि एआई आ गया अचानक से। अब एआई आ गया तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे, उसकी वजह से भी क्या होगा कि लोग डर रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बहुत सारे लोग वाकई में बेरोजगार हो रहे होंगे ड्यू टू टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी बर्थ रेट आपका नीचे की तरफ चला जाएगा। लोग सोचेंगे कि नहीं यार इतने बच्चे तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जब जॉब ही नहीं होगी तो अफोर्ड कहाँ से करेंगे। which also depended the changes in technology which caused employment opportunities for young generation while unemployment older ones, full stop. डेथ रेट, ये जो इट लिखा हुआ है बर्थ रेट के बारे में, फ्लक्चुएटेड कॉमा नेचुरल disasters and pandemic like COVID-19। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि लोग कभी कभी नजर आ रहा है कि ज्यादा मर रहे थे अचानक से। इट कुड बी बिकॉज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म की वजह से लोग मर रहे थे।
2000 से लेकर इस टाइम पे रमजान में भी हीट वेव आती थी, बारिशें होती नहीं थी, कोई मानसून की बारिशें नहीं हो रही, तो लोग हीट वेव से भी मर रहे होते थे। कभी कभी लोग नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक से या फ्लडिंग, अभी पिछले 4-5 साल में कितनी फ्लडिंग हुई है, फ्लडिंग से लोग मर रहे होते थे। या 2020 में तो कोविड 19 आया था, और कोविड 19 की वजह से भी बहुत सारी डेथ्स हुई थी, तालिबान अटैक्स की वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई थी। तो ये सारे रीजन से आज की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सॉल्व्ड अ वेरी लेंथी टॉपिक ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को हमने सॉल्व कर लिया। इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो, वी वुड बिगिन विद द पॉपुलेशन पिरामिड। मैं आपको पॉपुलेशन पिरामिड भी करवाऊंगा। उसके बाद फिर मजीद कुछ ग्राफ्स हैं, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। थैंक्स टू ऑल दोस 50 पीपल हु स्टेड टिल द एंड। और जो बाकी लोग चले गए, कितने कमजोर ईमान वाले लोग हैं ये, इतनी जल्दी ये लोग चले जाते हैं। सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।